آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو۔ ہاں جی، ہلو کون؟ جی، آپ کون؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ ابھی کال کیا آپ میرے نمبر پہ؟ ابھی جی اچھا، آپ نے ہاں کال اٹھایا نہیں، یہ دوسرے نمبر سے کال کیا گیا آپ نے؟ جی، اس کا نیٹورک نہیں، اس لیے اچھا، ابھی میں نے آپ کو کال کیا، آپ کے کال پہ جو ہے وہ وسیلے اور مدد کا انکار ہے، وہ ٹون بج رہی ہے کہ آپ وسیلے اور مدد کو نہیں مانتے؟ جی، وسیلے اور مدد کو نہیں مانتے ہیں آپ؟ وسیلے اور مدد کا؟ ہاں، آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ جماعت اہل حدیث نہیں، اور دیوبندی؟ حدیث نمبر جی، دیوبندی ہاں۔ اچھا، دیوبندی ہیں ہوں۔ تو اچھا، آپ کا جو دوسرے نمبر پہ جو کال کا ذرا نمبر بتانا بھائی، وہ اپنا نمبر یاد نہیں رکھنا پڑے گا۔ 86 675 جی 79 436، یہی ہے نا آپ کا نمبر؟ پھر سے بولیے۔ جی 866757579436۔ جی جی یہی ہے نا آپ کا نمبر؟ ہاں جی، یہی ہے۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے بھائی جان؟ جمال۔ جی، جمال۔ اچھا، جمال۔ اچھا، تو آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی اچھا، عالم ہے، مفتی صاحب ہیں؟ جی، آپ مفتی صاحب ہیں کہ عالم صاحب ہیں بھائی جان؟ میں چھٹا صاحب ہوں۔ جی، نہ ہی عالم ہوں نہ مفتی ہوں۔ اچھا، تو یہ ٹون ایک بج رہی تھی کہ بزرگوں کو جو ہے وہ مددگار مانتے ہیں، آپ ہی کے موبائل پہ بج رہی تھی نا، آپ ہی نے لگوائی ہے نا؟ جی اچھا، تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا بھائی جان کیسا ہے؟ جی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو لوگ مدد جو ہے لے لیتے ہیں، کسی سے مدد مانگ لیتے ہیں کہ یا غوث اعظم المدد آپ میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ المدد آپ میری مدد فرمائیے، ایسا جی عقیدہ رکھنا یا یہ سب کام کرنا، یہ درست ہے کہ نہ درست ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کیا ہے؟ درست ہے، جی، ناجائز ہے۔ ناجائز ہے؟ جی، کیسے بھائی جان؟ میں کیوں کسی سے مدد مانگوں؟ مددگار تو اللہ ہے نا۔ ہاں جی، کسی اور سے کوئی نہیں کرتی مدد کا۔ مگر اللہ نے جن کو پاور عطا کی ہو، طاقت عطا کی ہو، ان کو وہ شان و شوقت، وہ قوت عطا کی ہو، اللہ کی طاقت عطا کی ہے؟ وہ بھی اللہ کی عطا سے کرتے ہیں بھائی جان۔ اللہ سے اگر کسی کو طاقت اور قوت سے عطا کیا ہے تو وہ ہمارے نبی ہے، میں ان سے مانگوں گا، ان کے وسیلے سے مانگوں گا، اس کے سوا پھر کسی سے کیوں مانگوں گا؟ میں ڈائریکٹلی ان سے بھی نہیں مانگ سکتا۔ اچھا، یعنی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ آپ کے نزدیک بالکل درست نہیں ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ صحیح میں؟ بالکل صحیح۔ اچھا، مگر یہ تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ زندوں سے یا وصال شدہ لوگوں سے؟ جی پھر سے ایک بار۔ زندوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں نا؟ جنوں سے؟ جو حیات ہیں، جو زندہ ہیں، ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں یا ان سے بھی نہیں؟ کسی سے بھی نہیں۔ کسی سے بھی نہیں؟ نہیں۔ صحیح میں؟ بالکل صحیح۔ اچھا، چلیے تھوڑی سی ایک مثال دے دوں ہلکی سی۔ بالکل دیجیے۔ جیسے میں ہوں یا آپ ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک پریشان ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کی پریشانی دیکھ کے یا آپ نے میری پریشانی دیکھ کے آپ نے مجھے 500 روپے یا 100 روپے دیے، یہ مدد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مدد کچھ اور ہے، اور آپ جس مدد کی بات کر رہے ہیں وہ مدد کچھ اور ہے۔ اب تعریفیں نہ کرو، جی، تعریفیں مت کرو، اب وہ تو سب میں نے آپ سے پہلے ہی اگلوا لیا۔
क्या गलवालियत है? चलिए वो कोई आयत पढ़ दीजिए कि जिसमें जिंदा लोगों से हयात हयात जो हैं, जो जमीन पर चल फिर रहे हैं, उनसे मदद जी, तलब करना ये जो है जायज है, और जो जिनका विसाल हो गया उनसे मदद तलब करना ये जायज नहीं। चलिए कोई आयत पढ़िए या कोई हदीस सुना दीजिए, अगर आप ये तारीफ कर रहे हैं तो। ये है, ये वो है। मैं ऐसे है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट इतना मेरे पास इल्म है कि मैं किसी भी इंसान से खुदा हाजिर नाजिर समझ के मदद तो नहीं मांगूंगा, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो गलत है। फिर एक वो भाईचारे की मदद है, वो चीज अलग है। भाईजान तो आप जैसा शर्त रखे मेरे साथ, उस शर्त वो शराइत में किसी से मदद मांगना, वो मेरे नजदीक बिल्कुल गलत है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर चलिए भाईचारे में, रिश्तेदारी में अगर आपके पास कोई मुसीबत आफत आती है, आप किसी से हेल्प लेते हैं, तो वो बात अलग है। अच्छा, तो ये जो आपका अकीदा है ये सिर्फ सुन्नी हनफी बरेलवियों के ही लिए गलत है, नाजायज है, हराम है, शिर्क है, बिदअत है, क्या क्या है? या अगर उलमाए देवबंद का भी कोई जो है किसी जी, जो है कब्र वाले से मदद तलब करे, किसी वो से भी गलत है? जरूरी नहीं कि मुझे सिर्फ आले सुन्नत वालों से ही नफरत है। ऐसा करने वाला हर व्यक्ति से नफरत है, चाहे वो जिस भी जमात से ताल्लुक रखता हो। अच्छा, अहले सुन्नत करने वाले से ही नफरत है? हम्म, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अहले सुन्नत वालों से ही नहीं, अच्छा ऐसा समझने वाले वो हर जमात से नफरत है, चाहे वो जिस जमात से भी ताल्लुक रखती हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे मैं हूँ मिसाल के तौर से, ठीक है, अब मैं जी, किसी अल्लाह के वली की बारगाह में गया और मैंने वहां जाके कहा कि ए अल्लाह के वली, मैं बड़ा परेशान हूँ, आप मेरी जो है दस्तगीरी कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। ऐसा जी, करना क्या है, शिर्क है या दुरुस्त है, सही है? शिर्क है। अच्छा, क्यों? वो उस लायक नहीं है ना, मैं उसके मजार पे, उसके कब्र पे जाके क्यों मांगू? मुझे मांगना है तो फिर मैं नबी के वसीले से मांगूंगा ना। अच्छा 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 अच्छा। तो ये शिर्क बरेलवी करेंगे तभी होगा या देवबंदी करेंगे तब भी शिर्क होगा? कोई भी करेगा तो भी होगा। जरूर इसमें जरूरी नहीं कि वो किस जमात से ताल्लुक रखता हो, ऐसा करने वाला हर एक इंसान के लिए यही होगा, अच्छा अच्छा चाहे अच्छा वो जिस भी जमात से ताल्लुक रखता हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा जो भी करेगा जी, वो मुशरिक होगा? जी, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए तो एक हवाला सुन लीजिए भाईजान। ठीक है, सुनाइए। थानवी जी के एक पीर साहब हैं, जी, ठीक है, और जी, जी, उनका एक मुरीद जोलाहा है, जी, वो परेशानी में आ जाता है, परेशानी में मुब्तला हो जाता है, और अपने पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाके कहता है कि मैं जी, बड़ा परेशान हाल हूँ, तंगदस्ती में हूँ, है ना, आप मेरी जी, दस्तगीरी फरमाइए, रोटियों का मोहताज हूं। ये उसने जाके वहां अल्फाज कहे, किससे? जी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से। जी। तो आपको सबसे पहले तो वन मिनट देखिए आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। वन मैं मिनट पहले मेरी बात। देखिए बिल्कुल कुछ नहीं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये तीर क्या होता, क्या इसका मीनिंग क्या है? मुझे नहीं पता कि तीर क्या होता है, वो हाजी वो से अशरफ अली थानवी साहब से मालूम करिएगा, ठीक है? जी, अशरफ अली थानवी, देखिए जो आपका अकीदा उस पर आप अटल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पहले तो ये बताएं। अगर ये नहीं, बरेलवियों के तो लिए पहले मेरे को आप समझ बता में आना चाहिए ना कि आखिर ये तीर होता क्या है। ये ये तीर को अगर मैं समझूंगा तभी आपका सवाल का जवाब दे सकता ना। तो देखिए ये भाई, तीर क्या है, ये तीर का मानी हमको बताइए। तीर क्या होता है वो ये अशरफ अली थानवी साहब ही बताएंगे कि वो कौन से वाले पीर थे, क्या थे, ठीक है? जी, हाँ, तो बस जैसे जो आपका बात अकीदा कर है, रहे हैं, ठीक मैं है, अशरफ अली थानवी क्या के थे, बारे में मैंने इसका मतलब जानो कि तीर क्या होता है। देखिए भाई सुनिए, अब आप जो है हाँ, वो हद पार कर रहे हैं अपने आज अकीदे बार आप कर रहे हैं, 1 मिनट सुनिए। आप अगर बिल्कुल सही नसीहत कर रहे हैं और मुझसे गुफ्तगू अगर आप कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, ये मेरा डाउट है, और इसको क्लैरिटी देना ये आपका जिम्मेवारी है, आपके ऊपर फर्ज बनता है। इंशाल्लाह मैं ये तुम्हें जो बोलूंगा ये उसका जो हवाला तीर करूंगा। है, ये देखिए तीर का मतलब मैं समझता नहीं, इसलिए मुझे इसका पहले आप मीनिंग बताइए कि तीर क्या है, उसके बाद आगे सवाल करें आप, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। हुजूर गौस आजम को समझ लीजिए, हुजूर ख्वाजा नवाज को समझ लीजिए,
میں हुजूर गौस आजम की बारगाह में गया, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया, काबिर काली अली पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया, मैं किसी भी वली की बारगाह में गया और मैंने कहा कि मैं परेशान हाल हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, मेरी दस्तगिरी कीजिए, मैं रोटियों का मोहताज हूँ। तो वली को ही पीर कहा जाता है। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, किसी भी अल्लाह वाले को मान लीजिए, किसी भी कब्र वाले को मान लीजिए आप, मैंने इनका नाम लिया तो आप इनको तसव्वुर कर लीजिए। मैं अल्लाह वाले को मान तो नहीं है जरूर, लेकिन उनसे किसी चीज नहीं करो जी, अल्लाह वाले को मैं मानूंगा जरूर, उनके लिए उनकी इज्जत मेरी आंखों में होगी, मैं उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करूंगा, बहुत ज्यादा चाहत भी रखूंगा, लेकिन उनके वसीले से उनके लिए या उनके पास जाके तो किसी चीज का तलब नहीं करूंगा कि आप मतलब ये कर दो या फिर वो कर दो, ऐसी तो बातें नहीं रखूंगा उनके सामने। देखिए आप मत रखिए, हम आपसे कह थोड़ी रहे हैं भाईजान, जी हम आपसे थोड़ी कह रहे हैं। जी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पीर के वो जो मुरीद हैं वो कह रहे हैं, हजरत मैं बहुत परेशान हूँ और रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। हुक्म हुआ कि तुम हमारे मजार से 2 या आध आना रोज मिला करेगा, समझे, तुमको हमारे मजार से 2 या आध आना रोज मिला करेगा। एक मर्तबा मैं ज़ियारत को गया, कौन कह रहे हैं आप, थानवी जी कह रहे हैं, वो शख्स भी हाजिर था, उसने कुल कैफियत बयान करके कहा मुझे हर रोज वजीफा मुकर्रर वहीं कब्र से मिला करता है, समझे जनाब। ये खुद अब आप भी आपके थानवी जी कह रहे हैं, अब जरा लगाइए। मेरा थानवी जी क्या कह रहे हैं? थानवी जी कह रहे हैं उस बंदे ने मुझे आप बीती बताई, यानी कुल कैफियत बता दी मुझे जी। हाँ, और ये किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक। इसको लिखा कौन है? लिखने वाले हैं आपके हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब। और इसको कॉपी कौन किया? फिर वही बात, इसका कॉपी कौन किया? कॉपी कौन, वो उसको अपने घर में कर रहा है क्या कि प्रेस में हो रही है कॉपी? ऐसी बात है ना हजरत, ये प्रेस में बहुत सुना है। अच्छा एक मिनट, ये हवाला कोई गलत साबित कर दे, पूरी दुनिया देवबंदियत को चैलेंज करके बोलता हूँ, 1 लाख रुपए का इनाम देने के लिए मैं तैयार हूँ, वरना तौबा के लिए तैयार हो रहे हो? ये बोलो। तेरे पास जेब में 1000 रुपए में बात 1 लाख का करता है। किसकी जेब में 1000 नहीं है? तुम्हारे पास। तू जेल में गैब है? मुझे हाँ, बहुत अच्छी तरह है, बिल्कुल अच्छे से। अच्छा अब तू ये बता दे कि अगर तू हलाली है तो तूने सही कहा और हरामी है तो गलत कहा, बोल। कहीं अगर मैंने गलत कहा तो मैं हरामी हूँ और सही कहा तो हलाली हूँ, बोलो, ऐसा बोल दो। अब तुम तो बिल्कुल हरामी हो यार, इसमें कहने का या कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं। मुसलमानों देखो, इसकी जो दर्जा का हरामी है, पे मदद का इनकार है, ये मदद का इनकार कर रहा है और ये बदतमीजी कर रहा था एक ग्रुप में, इसीलिए मैंने इसको कॉल किया था। अब ये मौलवी अशरफ थानवी के चेले और पीर भाई को मुशरिक साबित कर चुका है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो इसका जोलाहा मुरीद पहुंचा और वहां जाके दस्तगिरी जो है तलब की, कहा कि मैं परेशान हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, आप मेरी मदद कीजिए यानी दस्तगिरी कीजिए। उन्होंने कहा कि तू हमारे मजार पर रोज आया कर, तुझे 2 या आध आना मिला करेगा। तो रोज जो है उसको जो है पैसा वहां से मिलता था। और फिर ये बात थानवी को बताई, ये बात फिर थानवी को बताई, थानवी ने कहा कि कुल कैफियत उसने मुझे ये पूरी वारदात बताई और ये पूरा वाकया जो है इसने इस किताब में भी लिख मारा। इमदादुल मुश्ताक किताब का नाम है। लिखा बाबा के पास जाने और बाबा के वसीले से मांगना, ये हमारा बेगम का काम नहीं। अबे मुल्ला जी, अच्छा 1 मिनट और, अच्छा ये बताइए तो आज तक मुल्ला जी, तुम्हारे पापा जी का नाम है मोहम्मद याकूब और उनके बेटे का नाम है मोहम्मद इस्माइल, ठीक है? तो मोहम्मद याकूब जब मर गया था और मरकर मिट्टी में मिल गया था, तो उसके मरने के बाद उसने शिफाखाना खोल लिया था कब्र में। जब वहां ननौता में जाड़ा बुखार की कसरत हुई और वहां बीमारी फैल गई, तो जो लोग उसकी कब्र से मिट्टी ले जाके बांध लेते थे, उन्हीं को ही आराम होता था, उनके अलावा किसी को आराम नहीं होता था।
हाँ बता, क्या कोई शिफा खाना खोला था, दवा खाना खोला था, क्या क्या करा था वहाँ? जो लोग मिट्टी ले आके बांध लेते थे उन्हें आराम होता था, उनके अलावा किसी को नहीं होता था। ये काम तुम्हारा है। फिर वही बात बकवास करने की जरूरत नहीं, तुम लाइल्म हो, कम इल्म हो, तुम्हें इल्म नहीं है। तुम्हें कैसे यकीन करो? तुम्हारा मुल्ला जी, एक मिनट, तुम्हारा मुफ्ती अजीजुर रहमान जिना करके साला करवान की कसम खा के बैठ गया, कुरान पे हाथ रख के उसने कसम खा ली और बोला कि मैंने ये काम नहीं किया। तुम तो इतने बड़े झूठे और मक्कार हो, तुम्हारा क्या जो है भरोसा है? मेरा भरोसा करना तेरे पक्ष की बात नहीं है। भरोसा कब करता हूँ? इसलिए तो तुझसे पूछा, तुझसे हुक्म लगवाया कि ये हुक्म सिर्फ जो शिर्क का हुक्म लगा रहा है ये सिर्फ सुन्नी बरेलियों के लिए होगा या देवंदियों के लिए भी होगा, इसलिए तो तुझसे पहले एक और हवाला सुन। थानवी जी का दादा हर व्यक्ति गलत है। हाँ माशाअल्लाह, अच्छी बात है तेरी। तो तेरे थानवी जी के दादा कबर से जो है अपने घर जब आते थे ना, मिठाई लेके आते थे, और उन्होंने अपनी बड़ी बी से वादा किया कि अगर तुम किसी से ना कहोगी तो हम रोज इसी तरह आया करेंगे। तो तुम्हारे थानवी जी के जो दादा थे वो अपने घर मिठाई लेके आते थे, उनके कबर में मिठाई उठाई की दुकान खुली हुई थी क्या, या पहले मार्केट जाके लेके आते थे मिठाई फिर घर पहुंचते थे? जरा बता, ये बिल्ला कौन है लाइट पे? ये कौन है जो तुझे समझाना पहले? पहले आंसर ही दे लो। तुम पहले कह रहा है कि घर में मिठाई लेके आते थे, फिर तुम सवाल डालता है कबर में मिठाई का दुकान खोले थे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कबर में मिठाई की दुकान नहीं क्या, पहले मार्केट जाते थे? जाहिर सी बात है मिठाई लेके जाएंगे। ये तो आपके घर की बात है, की बात कैसे आ रही है? सुनिए जनाब, ये तो आपके घर की बात है, तो आप बताएंगे ना कि कबर में उन्होंने दुकान मिठाई की खोली हुई थी, स्वीट जो है खोली हुई थी, या फिर पहले मार्केट जाते थे फिर घर आते थे बड़ी बी के लिए मिठाई लेके? कबर में भी कोई मिठाई का दुकान खोलता है? ये कौन चिल्ले का पिल्ला है जो बकरा है? इसे ही दे दो, ये ज्यादा अक्लमंद बन रहा है क्या? दो इसे, अभी उधेड़ता हूँ इसकी बखी, अभी इसकी बखी में उधेड़ता हूँ, दो इसे, दो चिल्ले के पिल्ले को। अबे तुम मुझे कुछ उधेड़ सको, ये तेरे बस की बात नहीं है। फिर पहले तो तुम सवाल सही से करो, उसके बाद जवाब करते। तू तो उधड़ गया, क्योंकि मैं ऐसा मौका ही नहीं छोड़ता हूँ जो ना उधेड़ू, मैं पहले ही उधड़वा लेता हूँ। तूने कहा कि ये जो भी करने वाला हो वो मुशरिक है, तो तेरे थानवी जी का पीर भाई जुलाहा वो तेरे फतवे से मुशरिक हुआ, क्योंकि तूने कहा जो भी हो, तूने सिर्फ पहले सुन्नत को नहीं कहा। अबे हमारे थानवी को मानने वाला ना ऐसा गंदा काम कर ही नहीं सकता, ये तेरे थानवी से बरखाने के लिए मान नहीं दो। इसीलिए तो तुम जाहिलों को फंसाते हैं, ये इसीलिए तो तुम जाहिलों को फंसाते हैं। तुम अपनी जहालत से निकलो, उसके बाद दूसरे को निकालो जहालत से। देख लो मुसलमानों, इन्होंने कहा मुसलमानों करने वाला जिंदगी जी रहा है, चाहे देवंदी हो कोई भी हो, मेरे नजदीक मुशरिक है, इन्होंने खुद कह दिया। माथा टेक रहा लंड बोलता है बहुत बड़का मुसलमान है, तू सादा मुसलमान है तू। अब एक चीज और सुनो भाई, अच्छा तुम्हारे चिल्ले के बिल्ले अभी ये कुर्बानी आ रही है, कुर्बानियों में खाल मांगने जाते हैं, मदद तलब करने जाते हैं, तो ये जो क्या मांगने जाते हैं? खाल जानवर की खाल मांगने जाते हैं। तुम कहते हो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए, ये लोगों के यहाँ मांगने जाते हैं। मुसलमानों के घरों में खाल मांगने जाते हैं, लोगों के घरों में खाल मांगने जाते हैं, जो भी लोग कुर्बानी करते हैं। देवबंदी जाते हैं, और कौन जाते हैं? देवबंदी खाल मांगने जाते हैं, जाके उनसे कुर्बानी का जानवर है और उसे मदरसा में भी किया जाता है। गरीब बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, उसको मतलब के दूसरे मत लो। एक नंबर का आपके यहाँ पे कोई वहाँ भी देवबंदी खाल मांगने आए तो इनको इनका अकीदा याद दिला देना कि अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह से मदद बदतमीजी मत कर। देव के बंदरो, किसी के घर जो है खाल मांगने मत जाना, वरना तुम अपने से फिर गए और तुम जानवर है वो हक बनता है गरीबों के मदद तलब करना, ये शिर्क है। तो तुम खाल लेने मदरसे के लिए खाल लेने किसी बंदे के यहाँ पे जा रहे हो, किसी बंदे के यहाँ पे जा रहे हो, अल्लाह से नहीं मांग रहे तुम खाल। गाली मत बैग, गाली मत बैग, गाली मत बैग,
तेरे पापा जी को मना कर, जितने भी तुम देव के बंदर हो, खाल मांगने मत जाना एक के घर भी किसी के यहाँ। अबे वही तो बोल रहा हूँ, जो जानवर की खाल है अपना बीवी से चोदने के लिए मांगेगा, उसको भी कहेगा कि मैं मांग रहा हूँ। देखो मुसलमानों, देखो ये साला गाली पे आ गया है। अब फैसला आपको करना है। ये गलत हरकतों का गलत नतीजा, अब ये गाली बक के काम कर रहा है, गाली बक के बात कर रहा है। मैं तो इससे बात कर रहा था, बदतमीजी पे ही आया कमीना, और इसको बौखलाहट तारी हो गई उस वक्त से जब मैंने कहा तेरे थानवी जी का पीर भाई जोराहा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद, वो जो है हाजी इमदादुल्लाह की बारगाह में उनकी कब्र पे जो है मदद तलब करने पहुंचा, दस्तगीरी कराने पहुंचा। मिर्ची लग गई। अरे साले हरामियों, कमीनों, बदबख्तों, देव के बंदों, क्यों जाते हो मुसलमानों के यहाँ खाल मांगने क्यों जाते हो बे? अरे तुम अपना जिना की पैदावार जमातियों की मेहनत रहती है, साले अशरफ हिजले की राजा, बदतमीजी मत कर, तेरा बाप के लिए मांगता है, उसको भी तुम देखो अभी इस हरामी से क्या बात करूं, अभी ये गालियों पर उतारा है। तुम बात करने का लायक नहीं क्या? अब तो तूने अपने मुल्लाओं को शिर्क के घाट उतार दिया, अब तो तूने अपने मुल्लाओं को शिर्क के घाट उतार दिया, शिर्क के घाट तूने उतार दिया, शिर्क के घाट उतार दिया, तूने शिर्क के घाट उतार दिया। वलादुज़िना अभी शुरू हो रहा है की गलत हरकतों के गलत नतीजे। वलादुज़िना तूने अपने तमाम मुल्लाओं को, तमाम नजदियों को शिर्क के घाट उतार दिया, शिर्क के घाट। तूने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद को भी शिर्क के घाट उतार दिया। अल्लाह तेरे पास फैसला करें, ये चिल्ले का पिल्ला जमातियों की मेहनत का नतीजा गालियों पर आ गया। अब इससे बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं भी जो है बहुत ज्यादा तेज हूँ, मैं भी बहुत कुछ बक सकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं, तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें।